This is myasthenia gravis. You can see the patient की normal eye है. This is a drooping eyelid. The neuromuscular junction is involved. The acetylcholine neurochemical is less. So transmission of nerve impulses नहीं होते. Because of that, the muscle is affected. Because of that, muscle becomes weak. You can see one eye is normal, one eye is drooping. It cannot come up. That is myasthenia gravis. And this is Graves' disease, hyperthyroidism. फिर देख रहे हैं पेशेंट की आइज से बाहर निकल रही हैं. बिल्कुल एक्सोप्थेल्मोस और प्रोक्टोसिस. एक हाइपोथायराइड स्टेट होती है, हाइपर होती है. हाइपर में हर चीज़ हाई स्टेज पे जा रही है, यानी कि बीपी विल गो शूटिंग हाई, हार्ट रेट विल बी वेरी फास्ट, पर्सन की हार्ट रेट बहुत होगी, पाल्पिटेशंस होती है, घबराहट होती है पेशेंट को. पूरा सिस्टम, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं एट 50-60 की स्पीड, हाइपोथायराइडिज्म में वो गाड़ी धीरे चलती है 20-30 पे, और थायरोटॉक्सिकोसिस में 120-130 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है. पूरा आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म हैज बिकम सो फास्ट एंड सो इवन आइज बाहर निकालती है पेशेंट. ये डायग्नोस्टिक बोला जाता है कि पेशेंट अगर प्रोक्टोसिस में है, एक्सोप्थेल्मोस है, मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस है. हमको थायराइड लेवल्स भी कराने की जरूरत नहीं, डायग्नोसिस ऐसे ही करना है. But this is autoimmune in nature. Autoimmune in nature. So when you get a thyrotoxicosis, you will also treat from autoimmune angle. Now we come to the most important, अपना प्यारा सब्जेक्ट जो सबको पसंद है, और आयुर्वेद में शायद पेट की ही महिमा करते हैं. वो लोग ट्रीट ही पेट को करते हैं. उनसे 80% बीमारियाँ पेट से होती हैं. तो सच बात है, एक दिन कॉन्स्टिपेशन हो तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है. जिसको एक हफ्ते होता है वो. So digestive system starts from mouth, esophagus, liver, pancreas, gallbladder. They are part of it. The tube goes like the stomach, duodenum, small intestine, large intestine, colon, pancreas. This is esophagus. This is the stomach. ये आपका लिवर है, इसमें gallbladder है. ये duodenum है. First part, second part duodenum. Then comes ileum, jejunum and ileum. This is the small intestine. Then it goes to large intestine. This is colon, large intestine. Ascending colon, transverse colon, descending colon, then sigmoid, rectum, rectum, and pelvis. Food which you, what does stomach do? Stomach has got some parietal cells and which secrete HCl, hydrochloric acid. All that food which you eat, all the virus and bacteria which are there in food will be killed by the hydrochloric acid. और इसमें पेप्सिन होता है, पेप्सिन is secreted which converts protein into peptides, amino acids. जितने फैट पार्ट होता है, lipids they are converted to fatty acid, cholesterol and triglycerides. Carbohydrates are converted into glucose. और फिर पूरी चर्निंग होती है. एंड चर्निंग के बाद उसको हम बोलते हैं partially digested food is called chyme. It takes almost 40 minutes for the stomach to make this. अब खाना खाते हैं उसका कभी कभी आवाज़ आती है, that is your stomach churning. भाई खाना आया, मुझसे काटा, चबाया, फिर churning हो गई. It will be made into a paste. And now it will flow आगे जाएगा. इसमें ना कलर्स दिख नहीं रहे, जैसे पिंक कलर. एक्चुअली मज़ा ही कलर्स का है. सी आई वेरी कॉमन फॉर जैसे आप ओपीडी में पेशेंट देखते हैं, एंडोस्कोपी में आएगा गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक इरोजन है, गैस्ट्रिक अल्सर है. देन यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दीज सो दैट देन यू कैन ट्रीट बेटर, है ना. Esophagitis is like, this is the plain mucosa and this part which you see, actually real slide में ये pink है और ये reddish है. You should be able to appreciate the color. Colors में अच्छा नहीं आ रहा. This is pinkish normal mucosa and this is reddish. Beauty ही colors में है इसकी. You know, I took out this slide so that you can really appreciate and see कि जो endoscopy में
गैस्ट्रो सर्जन जो देखता है वो आपको दिखेगा, और वो कलर्स ही नहीं आ रहे हैं. बट एनीवे, दिस इज हाउ द esophagus looks inside. This is normal pinkish mucosa and this reddish inflamed area. Inflammation is always red in color. This, मैम आप दिखा देना है. Yes, yes. सुंदर है. You gave me permission earlier. हाँ हाँ, ये सबको दे दो. You can take this PPT. Thank you. Similarly, a gastritis. Stomach का क्या होता है? This stomach has got an inner lining called mucosa. Stomach is secreting HCl, hydrochloric acid. This is a very strong acid. So it is going to burn the stomach itself. फूड को तो चर्न कर रहा है, लेकिन वो स्टमक को नहीं बर्न करेगा. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूकोसल, थिक म्यूकोसल लेयर होती है, so that you the acid doesn't hurt the stomach itself, stomach lining. What happens in gastritis is the inflammation of that lining has happened, which could be there because too much of spicy food, alcohol like aspirin, painkiller, drugs, Fasting. too much of tea, coffee, fasting long hours, stress. जब आप स्ट्रेस में होते हैं एक बाल्टी भर के एसिड फोड़ होता है. दैट्स द रिएक्शन ऑफ द बॉडी. स्ट्रेस में आओगे तो फटाक से एसिड फोड़ जाएगा. नॉर्मल रिएक्शन है. एड्रेनलिन डिस्चार्ज हुआ, पिंपल्स डायलेट हुए, इधर मसल्स में गया ब्लड फ्लो, एवरीथिंग विल हैपन. हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा. सो गैस्ट्राइटिस में एक इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेम्ड आपको म्यूकोसा मिलेगा, which is this mucosal layer is got inflamed, is called gastritis, which is called acidity. आप लोग बोलते हैं acidity हो गई, वो ये. But this is only involving the mucosal layer. हाँ ये निकालना मेरी शायद. Okay. रात में क्या? अच्छा, now you see erosion. The second step is, can you see ये भी ना actually this is all pink and you see whitish spots here. White spots. ये erosion है. एंडोस्कोपी में erosion दिखता है. आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है एंडोस्कोपी रिपोर्ट में गैस्ट्रिक erosion. अभी म्यूकोसल लेयर डैमेज हो गई. Then comes the stage of erosion. It is not inflamed, it is nearly gone. It has corroded the whole mucosal layer, that we call erosion. This is the second stage. Energies में सोचना कैसे इसको करना है, क्योंकि we are coming to the third. Ulcers or erosion? नहीं, अल्सर अभी आएगा. ये बार चेंज. This is ulcer. ये अल्सर है. आगे मैं नेक्स्ट टाइम. Can you see this? एक और स्लाइड. हाँ ये देखो, यहाँ पे ये इसमें ना पिक्चर अच्छी नहीं आ रही, बहुत सुंदर है स्लाइड. इसमें ये दिख रहा है, ये अल्सर है. अल्सर की स्टेज में म्यूकोसल लेयर तो चली गई, मसल लेयर इन्वॉल्व हो गई. स्टमक की मसल लेयर तक जब वो डीप चला गया, देन इट बिकम्स अ अल्सर. और अगर अल्सर की मसल लेयर को भी कर लिया तो परफोरेशन हो जाता है, बर्स्ट. अल्सर का नुकसान ये होता है, देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ इरोजन, परफोरेशन, बर्स्टिंग. तो मसल लेयर तक आ जाना डेंजरस होता है. इसका सिम्टम जैसे एसिडिटी में आपको यहाँ पे बर्निंग होगी, जलन होगी, है ना. अल्सर में पेन होता है, यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक एरिया में पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन. एंड अल्सर हैज़ टू बी ट्रीटेड. एसिडिटी को ट्रीट नहीं किया, इरोजन को ट्रीट नहीं किया, अल्सर से. और अल्सर को अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया तो पेशेंट एब्डोमिनल परफोरेशन, यानी कि वो थ्रू एंड थ्रू चला गया और सारा एसिड जो स्टमक का है वो निकल के अगल बगल एरिया में पैंक्रियास पता नहीं कहाँ पहुँचेगा. इट विल डिस्ट्रॉय ऑल दैट इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि फूड उसके कॉन्टैक्ट में आते ही डिसॉल्व होता है. तो वो आपके अगर ऑर्गन्स पे चला गया तो परफोरेशन में पेशेंट इमरजेंसी में आता है, सीधा ओटी में जाता है. बचता है नहीं बचता है, ठीक है. तो अल्सर को ट्रीट करना कितना इंपॉर्टेंट है. जब डॉक्टर होते हैं ना एंडोस्कोपी करा लो, भाई तो डॉक्टर को बोलो तो टेस्ट ही बता देता है. भाई बिकॉज अगर अल्सर है उसको बिल्कुल
like as an emergency we treat. We don't treat, then person comes in perspiration. Okay, so these are the stages. Muscle layer has been involved. और मसल लेयर में भी दो थोड़ी लेयर होती है. Once that layer is gone, then it's there is gastric cancer. The same mucosa become sick, and you can see the look itself is different. This is a tumor, again, gastric tumor, gastric cancer. Gastric cancer happens in young age also. Young age, 32-year-old, 30-year-old. It's not the old age one. This tumor you can see. अच्छा, गैस्ट्रिक कैंसर का प्रिकर्सर होता है एसिडिटी, लॉन्ग टर्म एसिडिटी. जो लॉन्ग टर्म एसिडिटी में रहता है, ऐसे इसको सेल्स को प्रिक कर करके these cells start dividing, and they anything which is chronic and constant can trigger a cancerous action. अगर एसिडिटी को इसलिए ट्रीट करते हैं कि वो आगे इसमें कन्वर्ट ना हो, एक अल्सर में ना बने, और दूसरा ये जिन लोगों को लॉन्ग टर्म एसिडिटी रहती है उनको इसोफेगल कैंसर या स्टमक कैंसर फॉर्म होते हैं. तो व्हाट मेडिसिन सेज स्टेज 1 पे ही कर स्टेज 1 पे खत्म करो. कैंसर ट्रीट करना मुश्किल है, कीमोथेरेपी, हॉरिबल, रेडिएशन, गोइंग थ्रू ऑल दैट इज पेनफुल. एसिडिटी को ट्रीट करके अपना सेटल कर लो. नाउ दिस इज पॉलिप. Polyp is another growth. Polyp is also a growth, but it is a normal tissue growth. Can you see? This is a mucosa. This is also mucosa. This is a polyp, but the consistency or the color and shape is same. आप इससे पहले वाले स्टेप करें, इससे कैंसर वाले को ये देखो, नॉर्मल टिश्यू है, नॉर्मल म्यूकोसा, और ये देखो. कैंसर सेल्स विल नेवर लुक नॉर्मल. कैंसर में हमेशा एक डर्टी सा लुक रहता है. तो पॉलिप, नेजल पॉलिप्स भी होते हैं, हर जगह पॉलिप होते हैं. पॉलिप देख लो, इट्स अ ग्रोथ, बट द सेल्स आर फंक्शनल एंड सेल्स आर नॉर्मल. सो इट इज अ बिनाइन ग्रोथ, इट्स नॉट अ कैंसर. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड कैंसर. देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स 7 मीटर लॉन्ग. ये भगवान की सोचो क्या पैकिंग है, बढ़िया. जीआई ट्रैक में तो इतना बढ़िया पैकिंग है जो हम लोग कर ही नहीं सकते. 7 मीटर लंबी, इतना बढ़िया ऐसे करके पैक कर देते. इतना सा पेट है, देखो, उसमें लिवर भी है, स्प्लीन भी है, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी है. Homophos. Packing. ब्यूटीफुली पैक्ड, जबरदस्त पैकिंग. नो स्पेस इज लेफ्ट, यू नो, एक्स्ट्रा, कुछ भी वेस्ट नहीं. तो दिस इज jejunum and this is and what happens in small intestine? Absorption of amino acid, fatty acids and glucose. जो हमने स्टमक में बनाया था वो सारा अब एब्जॉर्ब होगा. स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली फूड गेट्स कन्वर्टेड टू ब्लड. द फूड का मेजर कंपोनेंट्स है अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज उस पे आ गए जो कि एब्जॉर्ब हो सकते हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी एब्जॉर्ब इनटू ब्लड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो सारा जो होता है ना, खून बनता है, खाने से खून बनता है, खाने से खून स्मॉल इंटेस्टाइन. दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज हीट करता है. दिस इज योर इंटेस्टाइन. दिस हाउ इट एक्चुअली लुक्स. अब देखो, ड्राइंग्स अलग होती हैं. दिस इज हाउ योर स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज द मीसेंट्री. इसमें मीसेंट्री होती है, मीसेंट्रिक ब्लड वेसल्स है. दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन. मैंने आपको रियल पिक्चर्स रखी है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन. ऐसे क्यों कर रहे हो? है, आप लेके घूम रहे हो. भगवान ने सब कुछ बना के ऊपर से स्किन डाल दी. थैंक गॉड. पता ही नहीं चलता है, बट यू आर कैरिंग इट, इट्स विद यू. इसको थैंक यू बोलना पड़ेगा, काम कर रही है आपके लिए. See how beautiful is it? This is the small intestine. Villi होते हैं. Small intestine is characterized by villi. They are the ones which are going to absorb. एक विलाई में यहाँ पे ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज हैं. तो यहाँ से इंटेस्टाइन
ये यहाँ पे पैराइटल सेल से लेगा, एमिनो एसिड ग्लूकोज आएंगे और ये धीरे से ब्लड में चलेगा और ये बस ऐसे चलेगा। सो जो भी आप खा रहे हैं उसका एक्चुअल रियल एब्जॉर्प्शन इज हैपनिंग बाय दीज विलाई एंड माइक्रोविलाई, बहुत छोटे छोटे विलाई और माइक्रोविलाई। तो थैंक यू आपको सबको बोलना है अभी, ये इतनी एब्जॉर्ब करेगा तो कैसे चलेगा। सबको थैंक यू बोलना है। एक क्लास के बाद एक काम जरूर करना, सबको थैंक यू थैंक यू आईज, आई कैन सी, थैंक यू ईयर्स। दिस इज द लिवर। लिवर को तो प्रणाम करना चाहिए रोज। नहीं सच में बता दूँ, ब्रेन के बिना काम नहीं चलता, लेकिन लिवर के बिना काम चल ही नहीं सकता। लिवर में जिसका फेल हो गया, किडनी के बिना काम चल ही नहीं सकता। दे आर अंडररेटेड, इसके बारे में लोगों को पता है, दे आर नॉट फेमस, बट मैं बोल रही हूँ ब्रेन और हार्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम लिवर और किडनी का। आप कितना भी खा लो, अगर आप आगे मेटाबॉलिज्म में कुछ नहीं हुआ तो लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि बस वही है कि नाम ना हुआ, इतना नाम ना हुआ, फेमस नहीं हो पाया। But this is amazing. It has got a regenerative capacity. Liver is next one. The major functions are digestion. It produces bile. Bile helps in fat emulsification. Then all carbs are converted to glucose and they're stored there. The liver also stores glucose in the form of glycogen. सारा energy source liver में रहता है. Then सारा metabolization of liver into fatty acids and fatty acids convert to ATP. हम एनर्जी की बात करते हैं, मेडिकल वर्ड में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी। तो चाहे ग्लूकोज हो, जब बॉडी को यूज़ करना होता है वो ग्लूकोज को, फैटी एसिड को ATP में कन्वर्ट करती है और ATP यूज़ करते हैं और उस काम में लिवर हेल्प करता है। इसलिए आप देखना जब लिवर पैथोलॉजी है, जब हेपेटाइटिस होता है, सबसे पहला कंप्लेंट जान नहीं है, एनर्जी नहीं, बिल्कुल लिवर वाला पेशेंट हिल नहीं सकता। सारे ATP यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, सारा मेटाबॉलाइजेशन यहाँ पे होता है। इट इज़ अ रियल फैक्ट्री और ये काम नहीं करे तो है। और क्योंकि ये चुपचाप महाशय काम करते रहते हैं, हाँ, लेकिन जब ये फेल होता है तब पता चलता है इसकी वैल्यू। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अमीनो एसिड्स का सारा जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, मेटाबॉलाइजेशन लिवर में होता है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इसमें पार्ट लेते हैं। प्रोटीन इज कन्वर्टेड टू अमीनो एसिड टू अमाइन टू अमोनिया, और अमोनिया को बाहर निकालता है किडनी, यूरिया। अगर बॉडी में अमोनिया और यूरिया रह गया तो यू बिकम टॉक्सिक, यू कैन डाई बिकॉज ऑफ दैट। दिस पार्ट इज डन हियर। डिटॉक्स, ऑल दैट यू टेक, ऑल द मेडिसिन यू टेक, विटामिन यू टेक, कुछ भी आप बॉडी में लेते हो वो टॉक्सिक फॉर्म में होता है। उसको कन्वर्टिंग इनटू डिटॉक्सिक, एक हार्मफुल फॉर्म है, एक लेस हार्मफुल या नॉन हार्मफुल फॉर्म है। तो किसी भी चीज़ को नॉन हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना लिवर का काम है। चाहे कोई भी दवाई हो, एक प्रोटीन भी लेते हो लिवर भी खुल जाती है, उसको डिटॉक्स करना, ड्रग्स, अल्कोहल, एवरीथिंग इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म, ये लिवर का काम है। दिस इज अमेजिंग। ये कोई और ऑर्गन ये काम नहीं करता। तो प्रणाम करो, सब प्रणाम करो लिवर को। बिल्कुल स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इज हैपनिंग इन लिवर। देयर लॉट ऑफ सिंथेसिस आल्सो, विटामिन के सिंथेसाइज होता है लिवर में, समथिंग सिंथेसाइज लिवर में। जो आप अल्कोहल लेते हैं तो एक्चुअली आप अपने लिवर को डैमेज करते हैं, बिकॉज द एंजाइम्स आर लिमिटेड। वो एंजाइम्स को अल्कोहल को डिटॉक्स करने में लगाता है। फिर आप दवाइयाँ भी खा रहे हो, उसको भी डिटॉक्स करना है, कितना करेगा काम? और थैंक यू बोल नहीं रहे उसको। अच्छा एक बात बताओ, आपने मेरे लिए काम कर रहे हो तब से, तो मैं आपको बोलती थैंक्स, यू डन सो मच फॉर मी, कितना अच्छा लगता है ना। यू स्टार्ट स्माइलिंग। आपका लिवर कैसे स्माइल करेगा? क्योंकि आपने थैंक यू बोले ही नहीं आज तक। लिवर साइड में अनग्रेटफुल, इतना काम कर रहा है आपके लिए, सारा बॉडी का काम लिवर एक्चुअली कर रहा है। क्योंकि आगे अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज और जो सब आ गया बॉडी में, लेकिन वो अगर डाइजेशन और एसिमिलेशन ही होगा तो ब्लड में नहीं जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद का काम लिवर का है।
और उसके बाद वो फुल फाइनल प्रोडक्ट जाएगा ब्लड में। आपका ब्लड नहीं बनेगा अगर लिवर काम नहीं करेगा। आप कोई एक सिंपल क्रोसिन की गोली से मर सकते हो अगर डिटॉक्स या ना करें। तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू एवरी। थैंक यू। ये एक मिनट सिरोसिस। हाँ, this is cirrhosis. People who take lot of alcohol for long term, what happens is the hepatocytes, liver के cells को hepatocytes बोलते हैं, they get damaged. फिर उसके बाद जो बॉडी हील करती है वो फाइब्रोसिस से करती है। फाइब्रोसिस समझते हैं? जैसे बर्न पेशेंट होता है, बर्न पेशेंट आप, क्योंकि मैं बाहर दिखता है इसलिए बता रही हूँ। बर्न पेशेंट का देखा आपने स्किन कैसी हो जाती है, वो नॉर्मल स्किन नहीं होती है ना। तो बॉडी रिपेयर तो कर देती है बट इज नॉट अ नॉर्मल फंक्शनल स्किन। सिमिलरली लिवर में जब डैमेज होता है, जब वो हील करती है तो फाइब्रोसिस से हील करती है। फाइब्रोटिक टिश्यू इज नॉट नॉर्मल टिश्यू, इट डजंट फंक्शन द लिवर सेल्स। ना वो मेटाबोलाइज करता है, ना वो स्टोर करता है, ना वो डिटॉक्स करता है। सो यू हैव नॉन फंक्शनल फाइब्रोटिक सेल्स इन बिटवीन द नॉर्मल सेल्स, जैसे नोड्यूल्स बन जाते हैं, दिखते हैं बोले एंड द लिवर श्रिंक्स इन साइज and becomes cirrhotic. Cirrhosis of liver happens very commonly with alcohol. It can happen by other diseases also. Cirrhosis बहुत दिखता है, मतलब दिखता है हमको ओपीडीज में बहुत देखते हैं लोग। आपको भी मिलेगा इसी मोर ऑफ फैटी लिवर ना। ये इससे पहले फैटी लिवर फैटी लिवर इज अ प्रिकर्सर टू सिरोसिस। फैटी लिवर की स्टेजेस होती है 1, 2, 3। फैट डिपोजिशन, एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन लिवर से शुरू में, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ योर डाइट और अल्कोहल देयर बी फैट डिपोजिशन इन द लिवर। बट स्टेज 1 and 2 इज रिवर्सिबल। अगर उस स्टेज पे आप ठीक कर लेते हैं अपने आप को, एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, अल्कोहल ले रहे हो तो बंद कर दीजिए, है ना। तो या आप बहुत दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपने कम कर दी तो ये रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेज 2 के बाद 3, 4 पे जाके द फैटी लिवर कन्वर्ट्स इनटू सिरोसिस। तो जो फैट का जो सेल होता है वो आ जाता है, फिर डैमेज होता है, फिर वो फाइब्रोसिस होगा और फिर वो सिरोसिस होगा। तो फैटी लिवर को इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि स्टेज 1 and 2 रिवर्सिबल। एक बार आगे चला गया तो दिस कन्वर्ट्स इनटू अ सिरोसिस। अल्कोहल तो भूल ही जाओ ना, जो पीता है उसको भी भूल जाए करो। मेन डैमेज होते हैं। कम टू गैलब्लैडर, क्योंकि लिवर में ये पोजीशन है गैलब्लैडर की। दिस इज अ शेप ऑफ गैलब्लैडर। दिस इज अ मॉडल, ग्रीन कलर, ग्रीन येलोइश कलर गैलब्लैडर। This is liver and this is gallbladder lying down. The actual liver and actual gallbladder. कलर इतना अच्छा नहीं होता था, ग्रीनिश ऐसा दिखता है, बट इट्स दिस कलर बिकॉज ऑफ बाइल, इट स्टोर्स बाइल। बाइल इज ग्रीनिश येलोइश कलर। दिस इज गैलब्लैडर स्टोन, बहुत कॉमन आपको दिखता है। गैलब्लैडर स्टोन की फाइंडिंग इज वेरी कॉमन इन अल्ट्रासाउंड। दीज आर द स्टोन्स। बाइल जब अंदर इसका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है, क्रिस्टल्स बन के जिनके ये गैलब्लैडर स्टोन। And what gallbladder does is stores bile, and biles are formed in liver में बनता है bile और store gallbladder में होता है। And bile is made of bile salts and bilirubin, और ये सारा रिस्पॉन्सिबल होता है फैट डाइजेशन में। जब आपका बाइल चला नहीं अगर बन रहा है या तो फैट का डाइजेशन बहुत प्रॉब्लम होता है। गैलब्लैडर सर्जरी के बाद जिनका गैलब्लैडर निकल जाता है तो फैट डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, तो इसे कि लो फैट डाइट कीजिए। दिस इज पैनक्रियास, डियोडनम है ये, फर्स्ट पार्ट डियोडनम, सेकेंड पार्ट इसमें दिस इज पैनक्रियास।